Hello everyone, I'm Bhaskar from IIT Kanpur. I'm a political consultant, and today in this interview, I have this opportunity of conducting an interview with CA Shalini Sharma, who's a qualified chartered accountant and doing very well in her practice. Shalini also conducts financial workshops where she helps a lot and lot of youngsters and professionals in achieving financial freedom. So now, without wasting much of the time, let us immediately jump into the interview. This interview is going to help a lot of young chartered accountants who are preparing for chartered accountancy exams, because in this interview, CA Shalini will be sharing her own journey, what challenges did she undertook during her preparation, and how she overcame her challenges. At the same time, it's the best to learn from. It's always said that if you have to reach anywhere, then learn from people who have already been there and done that. Now, what could be a better opportunity for you young students who are preparing for this exam to learn from the horse's mouth itself, and not make the mistakes which she made, learn from her experiences. So I would really invite you to watch this interview till the end, because given her immense knowledge and experience of this profession, as well as the presiding journey to this as a qualified chartered accountant, there is lots and lots, tons of gold mine for you to learn from CA Shalini. So let us immediately go into it. Hello, hello, ma'am. So it's Hello, namaste. Thank you so much for giving me an idea of conducting this kind of interview. And the whole idea behind this interview was to help so many people who are either into their final stage of CA, or they are at entry level, or they are at IPCC level, to get maximum benefit out of my experience. So thank you so much for initiating the idea of conducting an interview. And one thing I would pledge and promise, that I would not talk anything fancy or any fancy things, but I will just share my real life, what all I have faced during my studies and what all challenges I have overcome. And as you all see, I am now qualified, so I am into my own practice, and I'm conducting my workshops as well. But I would not talk much about my professional front right now, because सक्सेस के बारे में सब लोग बातें करते हैं और फेलियर के बारे में या चैलेंजेस के बारे में बहुत कम लोग बातें करते हैं. So I just want to open up my heart for you. What all I have experienced, I want that you should learn from my mistakes, and maybe you should learn from my experiences and my bounce back quality. So I'm really super excited to be as a interviewee here. That's so nice of you. And so let us immediately jump into this interview. And I would like to ask you that, right now we are in a lockdown period. There is a lockdown, and I want you to share like how students should best use this lockdown period for their education. And yeah, definitely that's a one line, because a lot of us are experiencing boredom. This lockdown is extending. So we would like to listen to you on how should we use this lockdown period so that we get the maximum benefit out of it. And yeah, definitely we get maximum benefit out of it. Okay, so this question is, I think, for like I will be targeting mostly CA students only, because the biggest challenge for us is that
अभी लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है एंड जिसकी वजह से हमारी एग्जाम्स भी बढ़ रही हैं. सो नाउ द प्रपोज डेट ऑफ एग्जाम इज 29 जुलाई. अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये सब कंफ्यूजन होगा जो फाइनल लेवल पे हैं या जो आईपीसीसी लेवल पे हैं कि बिकॉज क्या होता है ना कि आप एक ही सब्जेक्ट एक ही ग्रुप बार बार पढ़ते हैं and you are somewhere stuck with a monotony life because you are all the time studying. Maybe आप group 1 अगर पढ़ रहे हैं तो आप बहुत सारे टाइम से देखिए. मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही हूँ बिकॉज आई हैव बीन एन एवरेज स्टूडेंट. मैं रैंक होल्डर्स की बात नहीं कर रही हूँ या ऑल इंडिया मतलब मैं रैंक होल्डर्स की बात नहीं कर रही. सो आई थिंक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के साथ तो ये प्रॉब्लम होती है बिकॉज उनको ये लगता है कि मैं बार बार एक ही चीज पढ़ रहा हूँ और उसके बाद से भी लॉकडाउन भी इंक्रीज हो गया है तो दे लूज देयर इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट एंड दे डोंट स्टडी और दे डोंट यूज देयर टाइम इफेक्टिवली. एंड यू नो दिस हैपेंस विद ऑल ऑफ अस. जैसे हम लोग अगर आपको अपनी बात बताएं तो सीए के लाइफ में तो हमेशा ही लॉकडाउन रहता है बिकॉज वी आर इनटू वेरी एक्टिव वर्ल्ड एंड देन अगेन before 3 months of the exam they sit at home. दुनिया से पूरा कांटेक्ट खत्म. तो हम लोगों को लॉकडाउन की बहुत ज्यादा आदत है नो डाउट. बट तब अभी ये पूरी कंट्री के लिए लॉकडाउन है तो मे बी ये थोड़ा एग्जाम एक्सटेंड हो रहा है इसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो सकती है. बट आई वुड जस्ट एडवाइज यू दैट नेवर लूज दैट spirit of studying and you know revising your subject because this is very much important. अगर आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया और आपको बोरिंग फील हो रहा है तो start giving more tests rather than studying the chapters or the content. आप टेस्ट ज्यादा दो बिकॉज उससे आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट फैक्टर भी आपके लाइफ में आएगा कि आप एक पढ़ाई को छोड़ करके आप टेस्ट दे रहे हो एग्जाम्स दे रहे हो. तो जैसे आपने फर्स्ट ग्रुप का प्रिपेयर किया सेकंड ग्रुप का प्रिपेयर किया तो आप दोनों ग्रुप का टेस्ट दे सकते हो. आपने एक सजेस्टेड लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाए एंड देन 2 से 5 बजे जो हमारा एग्जाम का टाइम होता है उस समय आप टेस्ट दे सकते हो. मैंने ये किया था. तो नॉट लॉकडाउन टाइम एग्जाम टाइम में लाइक आफ्टर फेलिंग यू नो आई रियलाइज दैट दिस सेम स्ट्रेटजी से तो वर्क नहीं कर रहा. ऐसा नहीं है कि आई डिडंट फेल. I failed many a times, but then after failing, you know, I realized that एक strategy से आप बार-बार उसी strategy को follow करते हो, तो उस चीज से आप पास नहीं होते हो. आप बहुत बार एग्जाम देते हो, उससे आप बहुत सारी चीजें सीखते हो. सीखने के बाद आपको रियलाइज होता है कि नहीं अभी मेरा क्या मिस्टेक है मुझे उसको ठीक करना है. जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेकेंड ग्रुप की बात करूँ तो सेकेंड ग्रुप में कॉस्टिंग मेरे लिए एक नाइटमेयर था. मुझे कॉस्टिंग कुछ भी नहीं समझ में आता था कि मैं कैसे बनाऊं कैसे करूं. When I used to study तो मैं ऑडिट करती. तो पहली बात मैं स्टूडेंट को बोलूंगी कि जो भी लोग लॉकडाउन में है अभी आपने अगर कॉस्टिंग को ऑडिट करके पढ़ा है मैंने बोला ना मैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करूंगी तो नो फैंसी थिंग्स. जो मैंने किया मिस्टेक्स वो मैं आपको बता रही हूँ. कॉस्टिंग में ऑडिट करके पढ़ती थी बट कॉस्टिंग को इज अ टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. आप उसको ऑडिट करके नहीं पढ़ सकते. तो ये लॉकडाउन में आपको बहुत ज्यादा टाइम मिला है. आप प्लीज उसको हाथ से लिख के बनाइए. give maximum time to your practical papers because क्या मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं जब भी ऑडिट करके जाती थी वो पेपर जो प्रैक्टिकल पेपर था तो वो ऑडिट करने के बाद मेरे से एग्जाम में हाथ ही नहीं चलता था. बहुत सारे परफॉर्मेंस बनाने होते हैं बहुत सारी फॉर्मेट्स होती हैं. यू नो द क्वेश्चन यू नो द आंसर बट उस 3 घंटे में आप हाथ चलाओ या दिमाग चलाओ कुछ भी नहीं चलता है. एंड देन even if you know things you just fail in your exam. So then one advice is never lose your spirit, keep on studying. maybe थोड़ा पैटर्न चेंज करो टेस्ट दो प्रैक्टिकल पेपर पे ज्यादा फोकस करो. what I used to do थ्योरी पेपर में मैं मॉर्निंग में करती थी तो आप थ्योरी पेपर को मॉर्निंग में कर सकते हो. हाँ एग्जैक्टली मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा था. जैसा आपने कहा कि आप कई बार आप भी फेल हुई और एंड यू बाउंस्ड बैक. So, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि एज अ बाउंस बैक स्ट्रेटजी आपने क्या-क्या अपने लेट अस से अपने 24 आवर्स को आपने किस तरह से डिवाइड किया so that you know you get maximum out of it. So if you can share your 24 hours plan when you did what? ये 24 आवर प्लान एक्चुअली हर बार सेम नहीं होता था. जैसे कभी होता था कि आप ऑफिस जैसे आई वाज इनटू माय जॉब एज वेल मैं ऑफिस भी जाती थी तो उस टाइम में मेरा टाइमिंग अलग था. बट इफ यू टॉक अबाउट एकदम प्रिसाइज 2 months बिफोर माय एग्जाम टाइम
सो मैंने अपने आप को इस तरीके से बिल्ड किया था, जैसे मैं आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, सो आई नो माई स्ट्रेंथ सिंस माई चाइल्डहुड। लाइक दोज हु डोंट नो मी, मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको, बिकॉज आई एम फ्रॉम झारखंड, एंड झारखंड में भी बहुत स्मॉल सिटी हजारीबाग से हूँ मैं। तो हमारे यहाँ का ये परंपरा है that हर कोई सुबह उठता है, और मेरे पापा ने भी मुझे हमेशा से सुबह ही उठाया। सो आई हैव दैट हैबिट ऑफ राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। सो दैट नॉलेज, दैट स्किल आई हैड कि अगर मैं सुबह उठना स्टार्ट कर देती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ सकती हूँ। और उसके बहुत सारे कारण थे, बिकॉज मैंने दिल्ली में पढ़ाई करी। जब दिल्ली में आप रहते हो, जैसे दिल्ली के लक्ष्मी नगर में आप रहते हो, लक्ष्मी नगर इज सो कंजस्टेड। लोग जैसे जैसे सुबह उठने लगते हैं शोर शराबा होने लगता है, इतनी छोटी छोटी फ्लैट्स होती हैं, इतने छोटे छोटे रूम्स होते हैं, आप किसको शांत रहने के लिए बोलोगे? आपके पास एक ऑप्शन है कि आप लाइब्रेरी जा सकते हो, बट देन मैंने थोड़ा टाइम उसको भी किया था, बट मुझे वो चीज वर्क नहीं करी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो लक्ष्मी नगर में ही करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो व्हाट आई डिड, आई हैड प्लान माई सेल्फ कि मैं सुबह 3 बजे उठती थी, एंड 3 o'clock टू लाइक 7-7:30 आई यूज टू स्टडी। और उस समय क्या पढ़ती थी, जैसे 3 o'clock to 5 o'clock मे बी मैं किसी दिन प्रैक्टिकल पेपर पढ़ती थी, बिकॉज कॉस्टिंग मुझे बहुत टफ लगता था। तो मे बी आई यूज टू सेलेक्ट सम टफेस्ट पेपर। तो जैसे मंडे टू संडे में 3 days आई यूज टू स्टडी प्रैक्टिकल पेपर, 3 days थ्योरी पेपर, ठीक है, सुबह उठ के, जो मेरे को बहुत हार्ड लगता था। जैसे अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूँ तो सेकंड ग्रुप में मुझे कॉस्टिंग बहुत टफ लगती थी, तो मैं सुबह उसको पढ़ती थी। सिमिलरली आपको अगर शायद पता ना हो, बट इसका इज अ नाइटमेयर फॉर मेनी स्टूडेंट्स, बिकॉज इसका इज टोटली लाइक कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग एंड इट इज अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हम लोग इस बैकग्राउंड से आते नहीं, सो फॉर अस कोरिलेटिंग विद दैट सब्जेक्ट इज टोटली डिफरेंट थिंग, एंड मोस्ट ऑफ अस लाइक बहुत कम लोग इसका समझ पाते हैं, रट के एग्जाम देते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो रटने वाला जो प्रोसेस था वो मैं सुबह करती थी, एंड उस चीज को मैंने एग्जाम के 2 महीने कंटिन्यू किया। मतलब इसका अगर मैं मॉर्निंग में पढ़ रही हूँ तो मैं 2 महीने कंटिन्यूअसली 2 घंटे दूंगी, दिन में नहीं पढ़ूंगी, बट 2 घंटे विद कंसिस्टेंसी आई विल गिव। बिकॉज यू नो लोग क्या करते हैं, सीए स्टूडेंट्स की एक सब्जेक्ट उठाते हैं, 10 दिन उसको पढ़ते हैं, देन उसको रख देते हैं। फिर से कोई दूसरा पेपर उठाते हैं, 10 दिन पढ़ते हैं, उसको रख देते हैं। फिर से कोई तीसरा पेपर उठाते हैं, 10 दिन पढ़ते हैं, उसको रख देते हैं। बट आई नेवर डिड दैट। मैंने पहले फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया था, फिर सेकंड ग्रुप क्लियर किया था। तो मैं दोनों आपको स्ट्रेटेजीज बता रही हूँ कि मैंने दोनों ग्रुप भी जब क्लियर किया तो मैंने यही किया कि अगर चार पेपर है मेरे पास, तो मैं चारों को जंबल अप करके पढ़ती थी। बिकॉज यू नो देयर इज अ कॉन्सेप्ट लाइक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आप बुक्स को 10 दिन तक बंद करके रख दोगे और दूसरी सब्जेक्ट पढ़ोगे, जैसे आपने फर्स्ट ग्रुप का अकाउंट्स पढ़ा, अकाउंट्स पढ़ के 10 दिन के लिए रख दिया, एसएफएम पढ़ने लगे, तो वो अकाउंट्स आप भूल जाओगे 10 दिन के बाद। सो यू हैव टू जंबल अप इन दैट वे एंड स्टडी। सो आई यूज्ड टू डू इसका मुझे बहुत टफ लगता था। तो मॉर्निंग आवर में ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है, स्पेशली दैट 4:30 का टाइम ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, तो ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है। और उसी टाइम में मुझे एक्सपीरियंस होता था कि मेरे को नींद बहुत ज्यादा आती। तो मैंने अपने क्लॉक को 4:30 से शिफ्ट करके 3 o'clock कर लिया। तो मैं 3 o'clock जब उठती थी तो आई यूज टू फोकस मोर। तो वो 3 से 7:30 मैंने ये किया, कॉस्टिंग पढ़ी, इसका पढ़ी। 7:30 आई यूज टू गेट अप, आई यूज टू फ्रेशन अप, आई यूज टू टेक बाथ, आई यूज टू हैव माय ब्रेकफास्ट। ऐसे करके मुझे 9 बज जाते थे। फिर मैं 9 o'clock से 10 o'clock तक सो जाती थी, ठीक है। अब ये प्रोसेस में 7:30 से लेकर 10 o'clock तक मोस्टली लोग ऑफिस का, घर का, ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं, या घर के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो ये बहुत थियोटिक टाइम होता था। तो उस टाइम को मैं अपने जैसे फ्रेश होने के लिए या ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम यूज कर लेती। फिर से मुझे दोपहर का टाइम मिल जाता था, शांत माहौल, जिस समय बच्चे भी स्कूल होते थे। मतलब बच्चे इन द सेंस कि हमारे आसपास के जो नेबर्स हैं वो लोग बहुत शोर मचाते थे, तो वो लोग भी स्कूल होते थे। फिर से अगल बगल के लोग इतना शोर शराबा नहीं करते थे, तो वो उस टाइम को फिर से मैं पढ़ती थी। शाम को फिर से मैं 4:30-5 बजे आई यूज टू टेक अ ब्रेक, एंड देन आफ्टर दैट अगेन आई यूज टू स्टडी। तो ऐसा करके मैं 9 बजे तक पढ़ती थी रात को, and then 9 बजे again I would like have my dinner and I would sleep. So this was my routine. तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से आप, मतलब सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपने शेयर किया वो आप हर सब्जेक्ट को जंबल अप करके पढ़ते थे,
कभी भी आप किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीटली छोड़ नहीं देते, जो कि एक यूजुअल प्रैक्टिस होती है एज स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि हम कुछ पढ़ते हैं और एक टाइम पढ़ते हैं, फिर वी कंप्लीटली लीव इट एंड देन यू नो मूव ऑन टू अदर सब्जेक्ट। बाय द टाइम वो खत्म होता है, ये भूल जाते हैं। आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट, एज यू वेरी राइटली पॉइंटेड। अब इसमें मैं एक चीज आपको, बस एक पॉइंट जो मैं मिस कर गई, आई वुड सॉरी आई टू इंटरप्ट, बट एक पॉइंट मेरे को भी ध्यान आया कि लोगों को ये लग सकता है कि आप डेली 4 पेपर या 8 पेपर नहीं पढ़ सकते हो, विच इज क्वाइट पॉसिबल। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 8 पेपर पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो यू डिवाइड लाइक 2 डेज, आप फर्स्ट हाफ में 1 पेपर पढ़ोगे, या फिर दिन भर में आप 3 पेपर पढ़ो, उसको 3 दिन तक फॉलो करो, फिर नेक्स्ट 3 डेज तक यू स्टडी अनदर बैलेंस पेपर्स, एंड संडे को आप मे बी रिलैक्स कर सकते हो या रिवाइज कर सकते हो या एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप किसी भी चीज को कंप्लीटली छोड़ना नहीं है, उसके साथ एक टच बनाए रखना। बिल्कुल बिल्कुल। मे बी आप उसका 2 पेजेस ही पढ़ो या एक चैप्टर पढ़ो, बट वो चीज दिमाग से नहीं बाहर जाना चाहिए। एंड जैसे अगर आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो, तो जैसे ऑडिट है, तो ऑडिट को अगर आप डेली भी पूरे 2 महीने 2 घंटे दोगे तो आपको उससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। बाकी के आपके 3 पेपर बचे, उसको आप डिवाइड कर लो। मे बी आप ऑडिट के साथ अकाउंट्स एंड लॉ पढ़ सकते हो। सिमिलरली नेक्स्ट डे ऑडिट के साथ आप एसएफएम एंड अकाउंट्स पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आपको 3 पेपर एट अ टाइम बना सकते हो। ओके, सो लाइक एज आई सम इट अप, एक तो आपने बोला कि ये बैलेंस्ड वे में हमें पढ़ना चाहिए, जिसमें वी गिव वॉइस इज लाइक या ओके। सो आई एम सेइंग दैट one thing that you very important thing you pointed out कि एक हमें बैलेंस्ड वे में पढ़ना चाहिए, मतलब एक तो कंप्लीटली कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, दूसरा मे बी वी कैन डू कि एक टफ सब्जेक्ट ले लिया और 1-2 इजी सब्जेक्ट्स ले लिए, और उस तरह से हम अपने वीक को ऐसे प्लान करें कि मोर और लेस 5-6 पेपर, डिपेंडिंग ऑन अगर सिर्फ एक ग्रुप है या 2 ग्रुप है, तो हम उसके सब्जेक्ट्स को इस तरह से मिक्स एंड मैच करें कि एक वीक में हम मोर और लेस सारे सब्जेक्ट्स खत्म करें। कभी कोई टफ है तो उसके साथ 2 इजी वाले रख लिए, फिर पहले 3 दिन, फिर 3 दिन हमने उसे दूसरे वाले को कर लिया। तो एक ये आपने शेयर किया। दूसरा अगेन जो मुझे बहुत अच्छा आपका अप्रोच लगा कि आप अपने आसपास के सराउंडिंग को भी इग्नोर करके नहीं चल रहे थे। अब आप लक्ष्मी नगर में रहते हो, आप जानते हो कि ये आपकी लोकेलिटी का ये सिस्टम है कि एक टाइम होगा जब बच्चे हल्ला करेंगे, एक टाइम होगा जब कि ऑफिस वाले ऑफिस जाएंगे, गाड़ियां आएंगी, उसी में से बीच बीच में किस किस समय आप ऐसा टाइम निकाल लो जब कंप्लीटली पीस होगा, और उस पीस में आप मैक्सिमम फोकस उस चीज को दोगे जो आपको सबसे टफ लगता है। प्लस जहां पे थोड़ा शोर शराबा होगा वहां आप रिलैक्स्ड चीजों को दोगे, जहां जो कि आपको इजी लगता है, क्योंकि वहां उतना ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला जो स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज क्या होता है कि हम जब शोर सही ओरिएंटेशन नहीं होने की वजह से वी आर नॉट एबल टू गेट द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। ओके, सो यस, सो मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट एक तो आपने बताया कि किस तरह से हमें टफ सब्जेक्ट को अपने सबसे प्राइम टाइम में पढ़ना चाहिए, जब हम सबसे ज्यादा पीसफुल हो और प्रोडक्टिव हो, जो हमारा टाइम बेस्ट टाइम है। At the same time, I would also like to ask you, आप एग्जाम देने के स्ट्रेटजी पे भी फोकस कर रहे थे, so I would just like you to elaborate on that point because you know कई बार एज अ स्टूडेंट हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें आता सब कुछ है लेकिन हमारा एग्जाम नहीं अच्छा जाता है। So you know, how did you took up that challenge? देखिए, हमें आता सब कुछ है, हमारा एग्जाम अच्छा नहीं जाता है, इसको मैं इस तरीके से बता पाऊंगी क्योंकि पढ़ते हम सभी हैं। अगर कोई सीए कर रहा है तो वो बच्चे को पहले ही पता है कि मुझे बहुत टफ कोर्स मैंने ज्वाइन किया है, एंड if they start from like CPT to their journey to finals, they are totally grayed up. ठीक है, but there are certain strategies apart from their educational background that they have to implement, and those strategies what I followed, I can tell that first thing is that mindset is very important, because if you have not that, if you don't have that bounce back mindset, if you are like very depressing kind of person कि अरे एक बार फेल हो गया, ये तो सी में मान के चलो भाई कि फेल तो होना ही है,
मतलब again I am talking about average students. I'm not talking about top 50 rank holders. But it is a quite hard fact and you have to accept it. The sooner you accept, the better for you. अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फेल होने के बाद 10-10 दिन 15-15 दिन डिप्रेशन में चले जाते हैं. अब लक्ष्मी में देखना, जब भी रिजल्ट्स आती है 15 डेज तक आपको पान वाले दुकान पे लड़के सुट्टा पीते दिखेंगे आपको मैक्सिमम, बिकॉज यू नो दे फाइंड इट अ स्टेटस की हो यार मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत स्ट्रेस में हूँ, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आई एम डूइंग ऑल दिस. बहुत ज्यादा चाय पी रहे होते हैं. बट अगर आप ये सब चीज नहीं करके एक बाउंस बैक माइंडसेट से, एक उसको कहते हैं ना कुछ करने की माइंडसेट से अगर आप फिर से बाउंस बैक करते हो, फाइन रिजल्ट नहीं क्लियर हुआ, यू सिट बैक एंड एनालाइज कि क्या क्या रीजन रहा फेल होने का एंड देन यू वर्क ऑन इट. तो मेरा रीजन बहुत सारा चीज था कि मैं एग्जाम में प्रैक्टिकल पेपर्स को बना नहीं पाती थी. वो 3 घंटा मेरा चला जाता था, मे बी मैं 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाती हूँ. बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम का क्वेश्चन इतना लेंदी होता है कि हमने अटेम्प्ट नहीं किया. अब जब आप 80% ही अटेम्प्ट कर रहे हो या 60% अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके चांसेस ऑफ ब्रिंगिंग 40% मार्क्स इज वेरी रेयर. मतलब ये सभी हो गया 40% अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो वो तो चला ही गया. तो अगर हमने नहीं उस चीज को समझा है तो ये हमारी गलती है. तो हमें उस पर वर्क करना चाहिए कि कैसे हम 100 मार्क्स का पेपर चाहे जो भी हो जाए हमें बना के आना है. ठीक है, उसके लिए आपको उस एलोकेटेड टाइम में एक्सरसाइजेस करनी होती है. जैसे आप बॉडी एक्सरसाइज करते हो, अच्छा खाना खाते हो अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, उसी तरीके से आपको कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस करनी है. तो फर्स्ट मेंटल एक्सरसाइज वाज दैट यू एनालाइज योर प्रॉब्लम्स, योर वीकनेसेस, योर स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ को लेके आगे बढ़ना है, वीकनेस को पीछे छोड़ना है. तो मेरा वीकनेस ये था कि मैं पेपर नहीं कर पाती थी. प्रैक्टिकल पेपर में मेरा हाथ ही नहीं चलता था. ठीक है, बनाने समझ ही नहीं आता था कैसे परफॉर्मा बनाऊं, कैसे अकाउंट्स में कैसे कंसोलिडेशन कैसे करूं. तो उस केस में मैंने आई स्टार्टेड गिविंग टेस्ट. मैं 2 to 5 जैसे जो 2 से 5 हमारे एग्जाम का टाइम होता है, मैं उसी टाइम में टेस्ट देती थी. जस्ट बिकॉज मेरा माइंड उस टाइम में बहुत एक्टिव होना चाहिए. तो मैंने माइंड को डोज दिया कि 2 से 5 तुझे बहुत एक्टिव रहना बाय डूइंग दैट एक्सरसाइज. तो वो मैं एग्जाम्स देती थी. अब एग्जाम देने के बाद मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस का एग्जाम देती थी, तो उसका आंसर भी सजेस्टेड आंसर्स में होता था. तो मैं पॉइंट टू पॉइंट देखती थी कि क्या एग्जामिनर को क्या चाहिए और मैं क्या दे रही हूँ. अगर एग्जामिनर को जो चाहिए मैं उसको वो दे रही हूँ तो आई विल पास इन माई एग्जाम. और वो उसका सबसे इजीएस्ट वे है सजेस्टेड आंसर, बिकॉज सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट निकालता है. इंस्टीट्यूट का जो स्टैंडर्ड है, अगर हम उस स्टैंडर्ड पे आ गए मतलब वी विल रीच टू आवर डेस्टिनेशन. हम कहीं भी बिलो स्टैंडर्ड हैं हम फेल हो जाएंगे. तो टेस्ट का मैंने बहुत बड़ा टेस्ट पे मैंने बहुत ज्यादा वर्क किया था और अभी भी मैं सबको बोलती हूँ टेस्ट दो. मे बी थ्योरी पेपर भी, थ्योरी पेपर को आपको इतना ब्यूटीफुली आंसर करना पड़ता है, बिकॉज प्रैक्टिकल पेपर में तो मे बी आपको स्टेप मार्किंग में भी मार्क्स मिल जाता है, बट थ्योरी पेपर में तो स्टेप मार्किंग भी नहीं होता. तो थ्योरी पेपर पे तो और भी आपको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव और बहुत अच्छे से आंसर करना होता है. तो एक तो मैंने टेस्ट का किया. सेकेंड माइंडसेट ये था मेरा कि मैं हमेशा देखो जो आप इनटेक करोगे वही आउटटेक भी है. तो आई ऑलवेज यूज टू वॉच सम मोटिवेशनल वीडियोस एज एन एक्सरसाइज. लाइक आई यूज टू गेट अप इन द मॉर्निंग. तो मैंने गौर गोपाल दास का एक 5 मिनट्स का वीडियो देख लिया कान में लगा के, एंड आई यूज टू मतलब उस समय चाय बना के पी लिया या ब्रश कर लिया. तो उस टाइम को मैंने ऐसे यूटिलाइज किया. संदीप महेश्वरी जी का मैंने वीडियोस देखे, तो उससे मैं हमेशा बूस्टअप रहती. बिकॉज देखो सीए की जर्नी में आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको फैमिली के अलावा कोई बूस्टअप करे, बहुत बड़ा मिथ है. रिलेटिव्स तो आपकी दिमाग खराब कर देंगे बोलते बोलते कि अरे इतना टाइम हो गया सीए नहीं बने. आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होंगी बिकॉज आप जॉब करने लगोगे, आपको घर से पैसे मांगने का मन नहीं करेगा. तो उसके लिए आपको सेल्फ बूस्टअप होना बहुत जरूरी है, आपको सेल्फ चार्ज अप होना बहुत जरूरी है. तो मैंने ये किया. वीडियोस मैंने बोला संदीप महेश्वरी का, गौर गोपाल दास जी का मैंने वीडियोस देखा. ये मुझे मैंने एक एक्सरसाइज की तरह देखा. मतलब गौर गोपाल दास का वीडियोस तो मैंने दिन भर में 4-5 बार देख लेती थी. जब भी मुझे एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन अभी आपसे पूछने ही वाला हूँ, सो एक बार हाँ जी ask you only this question. So एक्चुअली मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ. पहला तो फर्स्ट वाला मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप जो एग्जाम देने लगे, तो मैं आपसे ये कंपैरिजन पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप एग्जाम नहीं देते
और जब आप एग्जाम देने लगे एज प्रैक्टिस, तो दोनों में क्या डिफरेंस एक्सपीरियंस किया? मतलब एज अ स्टूडेंट बहुत बार हम पढ़ते हैं और हमें लगता है कि मतलब हम अपने हम एग्जाम नहीं देते, यू नो, समवेयर या तो हमें कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है, एग्जाम सेंटर वाला ज्वाइन करना पड़ता है, या फिर हम सीधा एग्जाम में ही बैठ के एग्जाम देते हैं। घर पे एग्जाम देने वाली हैबिट हम में मुझे उससे होती नहीं। बहुत बेनिफिट मिली, मुझे उससे बहुत तो बेनिफिट। दोनों में क्या आपसे क्लियरली अगर आपसे पूछने की पॉइंट वाइज आप बताइए कि क्या एक्सपीरियंस किया आपने डिफरेंस, सो दैट एज स्टूडेंट मैं मुझे क्लियर हो जाए। देखिए मैं सिर्फ एक पॉइंट पे तो नहीं बता सकती हूँ कि सिर्फ टेस्ट देने से या एग्जाम देने से मेरा रिजल्ट क्लियर हो गया, तो इस चीज को तो मैं वाउच नहीं करूंगी। ओनली गिविंग टेस्ट नेवर गिव मी रिजल्ट्स। टेस्ट के साथ मैंने जो भी चीजें की, मुझे लगता है ऑन एंड होल दैट आल्सो हेल्प। सो अगर आप सिर्फ टेस्ट की बात कर रहे हो तो टेस्ट देने से मेरा फियर खत्म हुआ एग्जाम को लेकर के। उस 3 आवर्स में आई डिड माय preparatory tasks before. So, like Abraham Lincoln said that if you are given 6 hours to chop a tree, so spend 4 hours in planning to sharpen the saw. So, मैंने वो जो प्लानिंग का पार्ट था वो मैंने टेस्ट इतने बार दिया, तो मुझे वो टेस्ट से मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि ज्यादा टाइम दिया, बिकॉज मैं लास्ट अटेम्प्ट में ही टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट लेके आई थी, तो मैंने एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम 3 बार टेस्ट दिया होगा। बट उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है एग्जाम में मेरा हाथ चलेगा, एग्जाम में मेरा ब्रेन चलेगा, और उस 3 घंटे में मेरे को 100% मार्क्स का क्वेश्चन बना के आना है। तो वो फियर खत्म हो गया एंड वो एक राइटिंग हैबिट आ गया मेरा, स्पीड आ गया, स्पीड आ गया। वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट आई वांट टू आस्क यू कि एग्जाम के टाइम में, और एक्चुअली ये पूरा सीए का जर्नी, इट इज यू नो a lot, it very time taking. Sorry, your voice, can you just repeat your question again? Okay, so let me repeat it. मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये जो सीए का जर्नी होता है ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज कई बार इवन एज सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आल्सो हर बार फर्स्ट अटेम्प्ट में हम अपने ग्रुप्स नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो कई बार यू नो मोस्टली इट टेक्स मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम. So during that period, you know, one thing is our study, and second thing, there is also a society behind us. There are relatives, there are family members, there are, you know, near and dear ones, friends, and our peers from schools also who are doing something or the other. So you know, how were you, being social persons, we are not able to, you know, सब चीजों को साइड करके, कई बार नेगेटिविटी भी आती है हमारी लाइफ में. So, you know, how did you handle that? And how, you know, you kept yourself motivated, you know, charged up? Or were these phases came into your life when you were also like depressed? And, you know, what steps did you take to again bounce back, come back? बहुत सारे टाइम आए एक्चुअली. Like when you asked me these questions, I was having goosebumps because depression तो था ही, पूरे टाइम था. Because मतलब मैं अगर अपनी स्टोरी शेयर करूं तो I told you that I am from a very small city. I am from like हजारीबाग. वहां तो लड़कियों को बाहर भी नहीं भेजा जाता पढ़ने के. But my parents sent me to Delhi to study. So I not came with you know, a banner that wow, I'm going to study in Delhi. I came with a baggage. अरे भाई सबको प्रूव करना है सीए बन के. और वो जो बैगेज होता है ना, वो बैगेज इतना स्ट्रेस क्रिएट करता है कि आपको दुनिया को प्रूव करना है, आपको अपनी फैमिली को प्रूव करना है, आपको अपनी सोसाइटी को प्रूव करना है कि नई लड़की भी बाहर जाके पढ़ सकती है और कुछ अचीव कर सकती है. तो वो जो बैगेज है वो धीरे धीरे आपके मन में फियर लाने लगता है जब आप उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाते हो या आपको डिले होता है फुलफिल करने में, या आपके मन में एक नेगेटिविटी लाती है कि अब मेरे पेरेंट्स को लोग क्या बोलेंगे, मुझे क्या बोलेंगे. आप कॉल अवॉइड करने लगते हो. और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रिलेटिव्स करते हैं. रिलेटिव्स आपको जीने नहीं देते हैं. बिकॉज जब भी आप मतलब ऐसा कहा जाता है हमारे सीए में कि आपके बर्थडे में आपके रिलेटिव्स फोन नहीं करते हैं,
बट सीए का रिजल्ट जब आता है पता नहीं उनको कहाँ से पता चल जाता है, वो रिजल्ट वाले दिन जरूर फोन करते हैं. So relatives are like that you know they will always put your mind into some depressing zone. They will just put all the garbage in your mind. अब आप उससे भुगतते रहो. Nobody will come to hold your hand. कि भाई ठीक है तुम्हारी जर्नी में बहुत स्ट्रेस है, हम तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको आगे बढ़ाएंगे. You have to fight. आप कुछ टाइम के बाद आप you start aging. You feel that oh my god अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ या मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरे को घर से पैसे मंगाने में शर्म आती है. ये बहुत सारे लोगों के साथ चलता है. तो मैं इसके लिए अगर कोई पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं ये बोलूंगी कि आप प्लीज अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए. बिकॉज सीए की पढ़ाई में एक जंग की तरह है. हम अकेले नहीं लड़ सकते. वी नीड समवन. माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी अ लॉट. और डिप्रेशन तो देखिए बहुत कॉमन चीज है. 90% जनता डिप्रेशन में ही चली जाती है सीए कोर्स की अगर हम बात करें तो. इट इज दैट it is that heartbreaking and challenging. I can experience that, when you are saying this, it looks like you have lived it. Yes, definitely. इतना नहीं आसान होता है. Being a girl, keeping yourself safe in a metropolitan city, and you are that zone में कि अब पापा मम्मी से कितने पैसे मांगेंगे, तो you start doing job. वहाँ अलग challenges, and then you're not clearing your exams because you're not getting ample time, and all sort of things going on in your aging. So मैं females के लिए particularly बोल रही हूँ. आपको फिर से एक डर आ जाता है, अरे यार शादी भी करनी है, बिकॉज पेरेंट्स का ये कहना होता है कि चलो आप तो शादी भी कर लो भाई, सीए तो बन नहीं रहे हो. वो भी एक टेंशन. अभी इन सब चीजों से निकलना है, बिकॉज अभी कोई फीमेल या मेल कोई भी सीए कर रहा है, फाइनल में आ रहा है, तो दे आर एम्बिशियस. अभी हम पॉइंट ये है कि देखिए प्रॉब्लम तो ये सबके साथ है. अभी उससे निकलने के लिए क्या क्या करना है, लेट अस टॉक ऑन दैट. बिकॉज प्रॉब्लम के बारे में प्रॉब्लम कहने से तो सॉल्व नहीं होगा. लेट अस टॉक ऑन द सॉल्यूशन. मैं क्या करती थी, एग्जाम के 2-3 महीने से तो मैं बात करना बंद कर देती थी. अब ऐसा नहीं है कि बात करके देखो हम इंसान है तो बात नहीं करेंगे तो हम पागल हो जाएंगे. तो यू टॉक टू योर फ्रेंड्स. मे बी अब सीए फेटर्निटी के लोग हो सकते हैं, या कुछ ऐसे दोस्त होते हैं हमारे लाइफ में जो किसी भी सिचुएशन में हमें बहुत हेल्प करते हैं. तो उस टाइम पे आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो. मैं जो करती थी, हाँ कुछ फ्रेंड्स थे, आई यूज्ड टू टॉक टू देम. आई हैड few friends who used to guide also me a lot. तो मैं उन लोगों से बात करती थी. और मैंने आपको बोला ना, मैंने गौर गोपाल दास का वीडियो इतना देखा है जितना पता नहीं शायद ही कोई देखा हो. क्योंकि जब भी मुझे स्ट्रेस होता था, जब भी मेरे को लगता था कि यार नहीं होगा, आई यूज्ड टू जस्ट सी हिज वीडियोस. और उनके वीडियो का एक जो मुझे उनके वीडियो में बहुत बेस्ट पार्ट लगा था, उसको मैंने ऐसा पोस्टर अपने घर में रूम में लगाया था. और मैं अपने मेरे रूम को अगर आप चारों तरफ से देखते तो मेरे रूम के हर वॉल में पोस्टर्स लगे हुए थे, संदीप माहेश्वरी के और गौर गोपाल दास के. जो भी मुझे कोटेशन अच्छा लगा, लक्ष्मी नगर में जब आप मेट्रो स्टेशन के नीचे जाते हो तो बहुत सारे पोस्टर्स मिलते रहते हैं, तो मैं बहुत सारा पोस्टर्स लेके आई और मैं अपने रूम में स्टिक किया. मैंने संदीप माहेश्वरी जी का पोस्टर प्रिंट आउट लिया, उसको रूम में स्टिक किया. गौर गोपाल दास जी का पोस्ट मुझे एक बहुत अच्छा लगा. उनका कॉन्टेक्स्ट एक कि do you have problem in life? Yes. Can you do something about it? Then why worry? Do you have problem in life? No. Then why worry? So simple. आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप उससे कुछ सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, तो ढूंढो एंड वर्क ऑन इट. अगर आपको लगता है आपके लाइफ में प्रॉब्लम है और आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो डोंट वरी. So that I उसको स्टिक किया मैंने. Then another thing what I did, I took a photo of my parents along with me and I stick that also in my room, and I wrote there that my parents are waiting me to see as a chartered accountant. And whenever I used to get up in the morning, I used to just take a tour of my room, and I used to just read every quote. मेरे माइंड को बहुत ज्यादा मैं हिट करती थी पॉजिटिव सोचने के लिए, तो वो सब मैं करती थी. Then I used to write in my diary, I am a chartered accountant, like 21 times लिख लिया. उससे क्या होता है, these are called manifestation exercises. These are called law of attraction exercises. The more you attract positivity, the more it comes in front of you. जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कुछ चीज चाहते हो शिद्दत से, तो सारी कायनात उसको मिलके आप तक पहुंचाती है.
तो सीए में देखिए मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखी ना, लोग आज भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है, दे आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम, या बहुत सारे लोग नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको नॉलेज नहीं है, बट माइंडसेट में प्रॉब्लम है। हम लोग फोकस्ड नहीं है, हम लोग मोटिवेटेड नहीं है। अब बहुत सारे लोग इस स्टडी पीरियड में क्या कर लेते हैं कि कुछ बहुत ज्यादा रेगुलर जॉब कर लेते हैं, जिससे उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो वो गलती कभी मत करना। बहुत सारे लोगों आप देखोगे इस टाइम पीरियड में दे हैव अफेयर्स, दे आर इनटू वेरी टर्मोइल रिलेशनशिप और इनटू अ वेरी टॉकेटिव रिलेशनशिप। ये सब चीजें आपका टाइम वेस्ट करती हैं। एवरीथिंग के लिए यू शुड हैव डिसिप्लिन इन योर लाइफ। कोई भी चीज को अपने लाइफ में हावी मत होने दो आप। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। एंड जैसे आप शाम को भी अगर इफ यू हैव अ कप ऑफ टी, देन यू शुड जस्ट सी सम गुड वीडियोस, लिसन टू सम गुड म्यूजिक। नेगेटिव लोगों को बिल्कुल बैन कर दो। अपने पेरेंट्स को भी मैंने जैसे अपने मदर फादर को भी बोला हुआ था कि एक स्पेसिफाइड टाइम आई विल कॉल यू। और जहां मुझे लगता था कि दे आर टॉकिंग एनीथिंग कि भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, देख लो जरा क्लियर करना है, मुझे जहां नेगेटिविटी लगता था मैं कुछ बहाना मार के फोन काट देती। सो यू शुड ऑलवेज बी इन दैट जोन कि आपको पॉजिटिवली हैंडल करना है चीजों को, नेगेटिव तो सुनना ही नहीं है। ये बहुत अच्छी एंड बात है। ऑलवेज कैपिटल ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। मूविंग फॉरवर्ड, always keep on saying yourself that I can do it, I can do it. तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये बहुत ज्यादा समय ऐसा आता है हमारी लाइफ में जब बहुत सारी निगेटिविटी रहती है, और उसको कैसे डील करें। सो पोस्टर्स लगाएं, taking a tour of the room, the manifestation exercise, writing the very thing, writing ki I am a CA 21 times, talking to parents, and cutting off conversations when you feel that it's going in the negative direction. And if I could just listen to you somewhere you were saying taking charge of things in your hands. So yeah, obviously I could just relate to it very much, because I have also been through this. I am an IIT graduate, so that period of preparation, इसमें बहुत सारा टाइम ऐसा होता है. But still, one more thing that I could also I know that as chartered accountant, and you being a female chartered accountant, so with females, today the challenges are even tougher than what it is with males like us. So I know that it takes extra courage on your part to just cut the crap from you must be from relatives and others. All sorts of people have all sorts of statements to pass if your times are increasing. You just mentioned affairs, so they might be saying that, I can assume, because a couple of my conversations with youngsters, they have shared me that they undergo this kind of tough conversations also, which bring a lot of negativity. So I would like to you to just share one or two sentences to female aspirants, because somewhere in this journey it's tougher for a female than what it is for males. So I would just like you to share one or two lines on that. And also I just want to bring up this point that you are an inspiration, because after your result, even the CA fraternity shared your post from their Facebook page. So I would like you to also share what the content of that post was. thank you for an overwhelming gratitude and overwhelming respect that you're showing to me. And that letter is very big, so abhi nahi bol sakti hu main. You can just go to my Facebook channel and you can see. But the crux was that
now if I talk about data of females, so there are just 21% female chartered accountants. So which is very less. और ये अभी हुआ है, like 2014 onwards this data came. But before that उससे भी कम डेटा था. तो बहुत कम लोग के पास करेज होता है, पेरेंट्स के पास या उन फीमेल के पास, कि वो आकर के सीए एज अ करियर चूज करें. Because no doubt it takes time. And but I think CA is like related to finance and money. So it is like लक्ष्मी, अगर लक्ष्मी को मैनेज करने लगेगी तो बहुत अच्छे से करेगी. तो मुझे लगता है सीए फीमेल्स को भी अपने आप को बहुत ज्यादा एनरोल करना चाहिए सीए कोर्स में. बिकॉज यू नो आपको एक रिस्पेक्ट मिलता है. यू गेट अ डिग्री. पीपल नो बाय योर डिग्री, बाय योर अचीवमेंट्स व्हाट यू हैव हैड. So that gives you a sense of belongingness towards yourself. So you know, females are in the, like, only few females are at the topmost position in our countries. So it is our duty to come up and take up these challenges. Why only males? Female will also reach to greater heights. So female should also come, and challenges तो देखो हैं, कहीं भी आप जाते हो आपको challenges मिलेंगे. बट अगर आप उस चैलेंजेस को, अगर उस सीन को आप करके निकल गए तो आपका लाइफ ही चेंज हो जाएगा. आज के डेट में मैं सीए बन गई, मेरे इतने टफ टाइम्स देखे, बट अगर मेरे घर में, अगर आई एम अ मैरिड, सो मेरे को लाइफ में कोई भी फैमिली में प्रॉब्लम आती है, कोई भी अपने प्रोफेशन में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अ टफ टाइम, तो मुझे हर चीज बहुत छोटा लगता है. So you know, being independent is very important thing for every female. And in being independent with respect, so that CA profession gives you. Wow, wonderful. So just एक बहुत अच्छा, you know, I am getting a quotation which I would like to say on this regard. It clearly, you know, identifies with your journey. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. So, correct. I could, you know, clearly, to sum it up, this is what your journey is, and you know, Yes. the kind of person you have evolved in that process. So okay, so we are concluding this. It has been a very enlightening session for all the young students who are preparing for chartered accountancy exam, which is just due in like next 2 months. And on the closing note, I would like you to share some 3 pointers that you would like to share, so that, you know, just takeaways, do tuck, 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 3 to 4 things that Okay. you really want them to do. First is that you should work on building a healthy mindset. तो आप मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले एक्सरसाइजेस करो, जैसे मैंने पोस्टर्स और गोल सेटिंग के बारे में बात किया था. आपको जो भी लगता है, आप किसी को भी फॉलो करते हो, तो स्टार्ट सीइंग गुड मोटिवेशनल वीडियोस. सेकंड थिंग इज बिल्ड एन हैबिट. बहुत सारे लोग रात में उठते हैं, कभी कभी सुबह उठते हैं पढ़ने के लिए, कभी दोपहर में सो जाते हैं, कभी रात में सो जाते हैं, कभी सुबह उठते हैं. सो नो, दैट विल नॉट वर्क, बिकॉज योर बॉडी इज लाइक, आप बॉडी को एक हैबिट दोगे तो आपका बॉडी भी आपको रिस्पॉन्ड करेगा. आप रात में सो रहे हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक होगा, उससे आपका ब्रेन भी इनएक्टिव रहेगा. सो एक हैबिट में रहना बहुत जरूरी है. हैबिट, देन कंसिस्टेंसी. लोग फर्स्ट वाला एक्सरसाइज, बिल्ड अ स्ट्रांग माइंडसेट, दे स्टार्ट डूइंग मेकिंग हैबिट्स, बट दे डोंट स्टिक टू इट. सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स दैट. So the 3 things that you have to follow, जो सबसे important मुझे लगता है, is brilliant mindset, second habit, and third is consistency. Keep on repeating your habits. कि आप सुबह, आपको उठने का मन कर रहा है, आपका कंसंट्रेशन सुबह है, आपको 3 दिन उठने के बाद बहुत नींद आएगी, बट 4th डे के बाद से you will rock. So उसको कंसिस्टेंसी में आपको बनाना होगा. एंड एक और मैं लास्ट बोलना चाहूंगी कि मेरे पास अभी लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स के कॉल आ रहे हैं कि एग्जाम इंस्टीट्यूट ने पोस्टपोन कर दिया है, अभी एक ही चीज को कितना बार पढ़ें. तो मैं उनके लिए एक छोटा सा एडवाइस दे रही हूँ
कि आप थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज कीजिए. मे बी अगर आप फर्स्ट ग्रुप पढ़ रहे हैं, सेकंड ग्रुप आपने टच ही नहीं किया, तो एटलीस्ट आप एक पेपर उठा करके 2 घंटे दे सकते हो, तो उससे आपका सेकंड पेपर भी पढ़ सकते हो. This was just out of the conversation I went, but this was a very important thing that came to my mind. So first Okay. is bring in mindset, habit, and consistency. You have to stick to it. Okay, so thanks, tons and tons of thanks to you, CA Shalini Sharma, for Thank your you. wonderful time, wonderful sharing, not just around academics, but also on the entire mindset, you know, that we need to have, because only in a healthy mindset, uh, best performances come. And you know, you shared the bounce back strategies, you shared about habits, consistencies, increasing performance in exams, and how not to, you know, be depressed, how to just bounce back from there into the zone which brings maximum productivity and positivity in us. So thank you very much. It was wonderful interacting with you, and I'm sure this video, when this is out there for the young chartered accountants, aspirants, it's really going to help them tons and tons. So it's my sincere advice to all the viewers, all the chartered accountants, to not miss it, and the parents also, because you touched very important points around parents' mindset also. When a student succeeds, it's not just the student who succeeds, it is the family also which succeeds, and at the same time family is also preparing in, you know, has an active contribution in this success. So on these closing words, let us conclude this interview, and viewers, just take the maximum advantage of Harsh's time and share it to everyone whom you feel would benefit out of this video, because you know, its own sharing is caring. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much. Thank you.